Wabarakatuhu. Am I clear? Am I audible? How's everyone? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, everything is good. How are you? Alhamdulillah, feeling good. And apologies for the cancellation of classes last week. Actually, I had some frequent visits to the clinic. Alhamdulillah, everything's okay and under control. So that's the reason. So whenever I have the clinic visits, I'm not able to take classes. So I please understand and cooperate. But inshallah, we'll try to catch up wherever possible. So we begin inshallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. We will begin our 37th session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the sealed nectar. Last हम लोगों ने जो खत्म किया था, where did we stop? We stopped at the third group of Muslims who were in charge of the protection of Nabi sallallahu alaihi wasallam. We are still discussing about Jang-e Uhud and what exactly happened, what went wrong, and things like that. So we are still in the middle of discussing Battle of Uhud. The battle intensifies around Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. As the Muslims were fighting against the main force of the idolaters, the fight began to intensify around Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, with who were only 9 people. अब जब हम लोग उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पर जो मक्कन्स थे वो लोग टर्न करके दोबारा से आ रहे थे, क्योंकि वो जो 50 लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी जगह छोड़ दी थी माले गनीमत के लालच में, तो उस वजह से हमारा जो प्रोटेक्शन था, जो डिफेंस मैकेनिज्म था, वो कमज़ोर पड़ने की वजह से दोबारा से जो है वो इंटेंसिफाई हो गई थी वॉर, एंड मुस्लिम्स वर इन ग्रेट डेंजर. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 9 लोग थे उनके आसपास, एंड ही वाज ऑल लेफ्ट आउट in between the mushrik. He has already been mentioned. It has already been mentioned that when the idolaters started encircling them, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was accompanied with only 9 people. As soon as he called out to the Muslims, "Come here! I am the Messenger of Allah." Azza wa Jal. The idolaters heard his voice and recognized him. They turned back and attacked him with all their power before any of his companions could come to his aid. अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉल आउट किया कि मुस्लिम्स इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा नबी तुम्हारा रसूल हूँ, तो उनकी आवाज जो है सहाबियों और मुस्लिम्स को पहुंचने से पहले किसने सुनी? मुशरिक्स ने सुनी, दुश्मन पार्टी ने सुनी, और वो लोग उनके ऊपर लपके. They all tried to attack him before the companions could come for his help. A violent and intense struggle broke out between the 9 Muslims and the idolaters, during which unmatched love, self-sacrifice, bravery and heroism was demonstrated by the 9 companions. अब आप इमेजिन करें कि सिर्फ 9 मुस्लिम्स थे, 9 सहाबास थे जिन्होंने अपनी बेस्ट, अपना सेल्फलेस लव, अपनी बहादुरी, अपना सैक्रिफाइस बहुत अच्छा उन्होंने मुजाहरा किया. उन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए. Imam Muslim, on the authority of Anas bin Malik, records that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, along with 7 Ansars and 2 Muhajirs, were confined to an area when the idolaters attacked him. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever pushes back those idolaters will be housed in paradise, or he will be my companion in paradise." अभी ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा रिस्क है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को, उनको खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो मुशरिक थे, जो बुत परस्त थे, जो दुश्मन थे, वो बिल्कुल लपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त, उस मोमेंट ऑफ इमरजेंसी और क्राइसिस में वो इंस्पायर कर रहे हैं उन लोगों को जो सिर्फ हैंडफुल ऑफ कंपेनियंस बचे हैं, जिसमें से 7 जो है वो अंसार में से थे और 2 मुहाजिर में से थे. दैट कंप्राइज्ड ऑफ 9 प्रोटेक्टर्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे हैं कि जो भी इन बुत परस्तों को या मुशरिक को पीछे पुश कर रहा है, उसके लिए इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह जन्नत में घर पक्का है, वो मेरा साथी होगा जन्नत में. One of the helpers stepped forward and fought against the idolaters, defending the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam until he was killed. They again attacked the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. The same process was repeated again and again until all the 7 helpers were killed. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam then said to his 2 companions from the Quraysh, "We have not done justice to our companions." ऐसा हो रहा था कि एक एक जो है वो ढाल बन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो रहे थे. तो वो जो 7
अंसार थे, उसमें से पहला एक आया, वो डिफेंड कर रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक कि वो कत्ल नहीं हो गया। फिर वो मरा, फिर उसके बाद एक दूसरा सहाबी, दूसरा अंसार सामने खड़ा हो गया। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 अंसारीज जो हैं वो कत्ल हो गए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ दो कुरैश में से बचे थे, 2 मुहाजिर थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि हम लोगों ने जस्टिस नहीं किया हमारे सहाबाज के साथ। द लास्ट ऑफ द 7 हेल्पर्स वाज Umara bin Yazid bin As-Sakhan radiyallahu anhu, who kept fighting until he was prevented by his wounds and he fell dead. जो अंसार में से जो एक थे उनका नाम मेंशन किया गया है, उमारा बिन यजीद बिन अस-सकान रदियल्लाहु अन्हु, जो कि आखिरी दम तक लड़ते रहे जब तक कि वो कत्ल नहीं हो गए। The most awkward hour in the messenger's life. After the fall of Ibn Sakan, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam remained alone with 2 of his companions who were from the Quraysh. According to Al-Bukhari and Muslim, Abu Uthman said, at that time there was no one with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam except Talha bin Ubaidullah and Saad bin Abi Waqas. यानी वो सारे साथ जो थे अंसार वो कत्ल होते गए और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 2 कुरैश बचे हुए थे, 2 मुहाजिर बचे हुए थे जिनके नाम थे तलहा बिन उबैदुल्लाह एंड साद बिन अबी वकास। ये बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में। That was the most uncomfortable and dangerous hour for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and a golden opportunity for the mushriks who tried to take advantage of it by concentrating their attack on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with to the intention to murder him. यानी ये जो था, ये मोमेंट, ये जो पल था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का सबसे अनकंफर्टेबल, सबसे डेंजरस, सबसे ऑकवर्ड मोमेंट था, जबकि वो सिर्फ 2 अपने कुरैश साथियों के साथ थे और जो मुशरिक थे, जो बुत परस्त थे, जो दुश्मन थे मक्कन के, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहां पर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल आसानी से कर सकते थे। Utbah bin Abi Waqas pelted him with stones. One of which struck his face, causing injury to his lower right incisor tooth and wounding his lower lip. He was also attacked by Abdullah bin Shihab az-Zuhri, who injured his forehead. Abdullah bin Qamiya refers to a humiliated woman who was an obstinate, strong horseman, struck him violently on his shoulder with his sword that did not penetrate his 2 armors. However, the blow would cause pain to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam for a month. अभी हम लोग देख रहे हैं कि इतनी डेंजरस और इतनी वल्नरेबल कंडीशन है और कौन कौन मुशरिक ने उनको कहाँ कहाँ पर अटैक किया। तो एक जो था कुरैश जिसका नाम था उतबा बिन अबी वकास, उसने स्टोन्स मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनके फेस पे लगे, जिसकी चोट जो है उनको लोअर राइट इंसिजर यानी नीचे के दांत के जो आगे के फ्रंट के जो दांत है हमारे इंसिजर, उस टूथ पे लगे जिससे उनको लोअर लिप के ऊपर भी इंजरी आ गई। फिर दूसरा किसने किया उनको अटैक? अब्दुल्ला बिन शिहाब az-Zuhri ने उनके फोरहेड पे अटैक किया। अब्दुल्ला बिन कामिया ने उनको कहाँ पर अटैक किया? वो हॉर्समैन था, घोड़े पे सवार था, उसने वायलेंटली उनके शोल्डर के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक किया। लेकिन हमें याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डबल प्रोटेक्शन रखी थी, एक आर्मर आगे से और एक आर्मर पीछे से पहना हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह वो आर्मर की वजह से अल्लाह ने उनकी बचत की और वो पेनिट्रेट नहीं की, सोड उनके जिस्म के अंदर पेनिट्रेट नहीं की। लेकिन जो उसकी इंजरी की जो दर्द थी वो तकरीबन 1 मंथ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बॉदर करती रही। He also dealt a heavy blow on the Prophet's cheek, which caused 2 rings from his iron ringed helmet to penetrate into them. अब एक जो हैवी ब्लो उनको सर के ऊपर अटैक किया, उससे ये हुआ कि जो उनकी हेलमेट के अंदर जो 2 मेटल की रिंग थी वो उनके स्किन के अंदर घुस गई थी, तो उसकी भी चोट थोड़ी शदीद थी। He said, take the stroke from me, for I am Ibn Qamiya. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam replied while wiping the blood from his face, I beseech Allah to humiliate you. यानी वो अपनी कड़वाहट, अपनी दुश्मनी, अपने टॉन्ट्स जारी रखे हुए थे और यही इब्न कामिया कह रहा है कि मेरे तरफ से ये स्ट्रोक लो, मैं हूँ इब्न कामिया। अपने तकब्बुर, अपने घमंड में ये लोग फिर भी डूबे हुए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे से मुबारक से खून साफ करते हुए कहा, उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से कि वो अल्लाह ताला उनको ह्यूमिलिएट करे, उनको बेइज्जती करे उनकी। In the narration recorded by Al-Bukhari and Muslim, it is stated that when his incisor broke and his head was injured, he started wiping the blood and saying, how can a people who cut the face of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and broke his teeth while he calls them to worship Allah thrive or be successful? अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए तो ये फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल पेन, फिजिकल ह्यूमिलिएशन से गुजर रहे हैं। His
वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, बिकॉज वो उनका दांत जो है वो शहीद हो गया, माथे पे चोट लग गई, शोल्डर पे चोट लग गई, एंड ही इज फेसिंग दैट पेन। उस पेन के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमेंट्स इस तरीके से निकले कि कैसी वो उम्मत जो है वो सक्सेसफुल होगी जो अपने नबी को इस तरीके से अजियत पहुंचा रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई जो कि सूरा नंबर 3 वर्स नंबर 128 में हमें मिलती है। नॉट फॉर यू ओ मोहम्मद बट फॉर द अल्लाह is the decision whether he turns in mercy to pardon them or punish them. Verily they are the zalimun, the disobedience, the mushrik and the wrongdoers. यानी आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी यानी हाउ अल्लाह यूज्ड टू करेक्ट एंड रेक्टिफाई हिम पल 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 हर जगह पर, भले के हत्ता के ह्यूमन और रियलिटी बेस्ड में जब इस तरीके की अजियत आपको कोई पहुंचा रहा है, एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स जो हैं वो फिर भी बहुत कंट्रोल्ड हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल सेज कि तुम नहीं जानते अल्लाह ताला का डिसीजन क्या होगा, तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला की मर्सी कैसी होगी। अगर यही लोग अगर अल्लाह से माफी मांगेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ भी कर सकते हैं। तो आपके हाथ में नहीं है डिसाइड देयर डेस्टिनी। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट कि अल्लाह ताला के जो कंट्रोल है या अल्लाह ताला के जो काम है या अल्लाह ताला की जो सिफात है वो किसी और के पास नहीं हो सकती, और हम जो है वो जजमेंटल नहीं हो सकते किसको जन्नत किसको दोज़ख, कौन गारत होगा, किसके साथ क्या मामला होगा, किस हालत में किसकी डेथ होगी। वी कैन नॉट डिसाइड एनी ऑफ दिस बिकॉज ये सारा मामला जो है अल्लाह की सिफत है और अल्लाह के हाथ में है और अल्लाहु आलम। हमारा इंटरफेरेंस उसमें या हमारे कमेंट्स उसमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। So be very careful whenever you decide or being judgmental about anybody. कभी भी आप judgmental नहीं बने, आप कोई भी decision कोई भी comments पास नहीं करें। हर वक्त मैं कहती हूँ जब भी आपकी सोच में एक सेंटेंस बन गया और आप वो वर्ड्स को अटर करने जाएं तो सोचें, बहुत बार सोचें कि am I right uttering the same thing? इससे फायदा होगा मुझे दुनिया में आखिरा में, कहीं मैं कोई गलत कलेमात तो नहीं बोल रही, कहीं मैं शिरकिया कलेमात तो नहीं बोल रही हूँ, am I doing some sin? Be very careful whenever you open your mouth, because आप देखिए हर पल हर जगह हर सिचुएशन में अल्लाह ताला is showing his power, his importance, his magnitude। तो हमें जो है बहुत केयरफुल रहना है। The way he is correcting नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, it is a lesson for all of us as well that we cannot be judgmental। डेफिनेटली ये जो हरकत है इसको कंडेम किया जा रहा है, मगर we are not here to decide their destiny। At-Tabrani relates that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah's wrath is great on those who wound the face of his messenger sallallahu alaihi wasallam. He became silent for a short while and then said, Oh Allah, forgive my people for they do not know। at-Tabrani में एक रिकॉर्ड है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह का जो गुस्सा या गजब है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ग्रेट है, क्योंकि अल्लाह विल नेवर एक्सेप्टेड कि उनके नबी उनके रसूल को हार्म पहुंचाया जाए। एंड देन फिर वो थोड़ी टाइम के लिए खामोश हो गए। देन ही सेड, ओ अल्लाह, फॉरगिव माय पीपल फॉर दे डू नॉट नो। दिस इज अ बेटर अप्रोच। इट इज रिकॉर्डेड इन सही मुस्लिम दैट अल्लाह's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, My Lord, forgive my people for they have no knowledge। यानी ये जो तरीकाकार है ना, ये अभी हमारे लिए क्या है इसमें लेसन, कि हमारे साथ भी बहुत से लोग ऐसे होंगे विद इन आवर फैमिली, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे रिलेटिव्स, हमारे इन लॉज, हमारे बहुत ही करीबी फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो knowingly and unknowingly, intentionally and unintentionally हमको harm और hurt पहुंचाते हैं। For some time हमारी कैफियत कैसी होती है, we are in rage, हम गुस्से में आते हैं, हम गलत सलत कलिमात बोलते हैं, हम हत्ता के कर्ज भी कर देते हैं। लेकिन जो सही तर्ज अमल क्या है वो ये है, उनके हक में दुआ करें, उनके लिए हिदायत की दुआ करें, अपने लिए इस्तगफार करें, माफियाँ मांगे। क्योंकि आप एक चीज जहन में रखें कि जब भी कोई सिचुएशन इस तरीके की आती है, कहीं ना कहीं जाकर इसमें हमारे लिए एक लेसन है और हमारे लिए एक बहुत अच्छे काम करने का मौका है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। हम बहुत ज्यादा दुआ करेंगे, हम बहुत शिद्दत से इस्तगफार करेंगे, हम अपनी और अपने लोगों के लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। दैट इज द बेस्ट यू कैन डू। टू थिंग्स, मगफिरत एंड हिदाया, इसकी दुआ करते रहें, क्योंकि दैट इज हाउ यू विल राइज इन द आईज ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आप गलत कलिमात, कर्सिंग, अब्यूजिंग, इसमें किसका नुकसान है? फिर हमारा ही नुकसान है, डबल नुकसान है। इसीलिए आई कीप इंसिस्टिंग द स्टेट ऑफ माइंड। आती है कैफियत, मैं कह रही हूँ ये जितनी बातें हैं ये करना बहुत मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं है।
हर रोज अपने आप को ट्रेन करें इस चीज के लिए, और ये शुरू होता है अपने ही घर के इमीडिएट लेवल पे। यानी सबसे अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको बोलूंगी कि अपने बच्चों के साथ जो हमारे मामलात होते हैं, पल 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 दे विल बी ट्राइंग यू, पल पल वो आपको आजमाइश में डालते रहेंगे, सिचुएशन में डालेंगे। लेकिन प्लीज टेक अ ब्रीदर, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कीजिए। इफ यू आर स्टैंडिंग सिट डाउन, इफ यू आर सिटिंग लाई डाउन, चेंज द पोजीशन, गेट इन टू योर सेंसेस। एंड उनको गुस्से में ना बदुआ देनी है, ना गाली देनी है, ना चिड़चिड़ करना है, सिर्फ दुआ दें, अल्लाह ही यहदीनी व यहदीकुम, अल्लाह ही इस्लाहकुम। बेहतरीन दुआएं दें उनको, गुस्से की हालत में बेहतरीन दुआएं दें। एंड ये प्रैक्टिस जब आप करने लगेंगे तो इंशाल्लाह यू विल सी दैट योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस एंड आपकी जो सिचुएशन है विद अदर रिलेटिव्स एंड विद अदर इन लॉज एंड विद अदर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जो भी आपको अनॉय और एजिटेट करते हैं, यू विल नॉट बी कर्सिंग देम, इनफैक्ट यू विल बी प्रेइंग फॉर देम। क्योंकि जब अल्लाह की हिदायत आ गई तो आपके मामलात ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। It is quite clear that their primary intent was to kill the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. However, they were stopped by Sa'ad bin Abi Waqqas and Talha bin Ubaidullah, who were from the Quraysh. They both immense bravery and courage and fought fiercely and valiantly. They were from amongst the best archers, and they continued fighting, defending Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam until the entire squad of idolaters was driven away from him. जो दो कुरैश साथी बच्चे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, साद बिन अबी वकास और तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा, ये कुरैश में से थे और माशाल्लाह बहुत शातिर थे, बहुत अच्छे वॉर्समैन थे। तो उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ, अपनी तीरंदाजी के साथ बेइज़्निल्लाह कंटिन्यू किया फाइट करना और डिफेंड करना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और वो दो बंदों ने पूरी जो टीम थी, पूरी स्क्वाड थी जो मुशरिक की, उन लोगों को भगा दिया। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam emptied his quiver of arrows and said to Sa'ad bin Abi Waqqas, "Shoot an arrow, Sa'ad. May my mother and father be ransom for you." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had never said such a thing about his parents, except in the case of Sa'ad, a privilege granted to him for his efficiency. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपना जो वो तीर का जो क्वेर होता है ना, वो भी तीर पकड़ा दिया साद बिन अबी वकास को, और उनको कहा कि शूट करो ये एरो। और फिर उन्होंने, जैसे कि उनका अरबी कल्चर होता था, कलिमात उनके ऐसे होते थे कि मे माई फादर एंड मदर बी रैंसम फॉर यू, यानी मेरे माँ बाप जो हैं वो तुम्हारे लिए एज अ रैंसम, एज अ जमानत के हो, और तुम जो है ये कंटिन्यू करो। वो बहुत अंदर से दिली तौर से खुश हो रहे थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद और वालिदैन के लिए कभी ऐसे कलिमात यूज नहीं किए थे। दिस वाज ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम जो उन्होंने साथ के लिए यूज किया था, क्योंकि वो मौका ऐसा था कि वो अकेला बंदा इस तरीके से अपने नबी को प्रोटेक्ट कर रहा था उस वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत थी। An-Nasai records concerning the attitude of Talha bin Ubaidullah radiallahu anhu towards the idolaters who were gathered around Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and only some helpers with him, that Jabir said, when the idolaters reached him, Allah's Messenger said, "Who will suffice us from their evil?" That is, fight them back. Talha said, "I will." यानी एक और एक रिकॉर्डिंग्स, अन्नसाई की रिकॉर्डिंग्स में बताया कि तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु का एटीट्यूड ऐसा था कि जब ये सिचुएशन राइज हुई कि सब मुशरिक आ रहे हैं अटैक करने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नहीं बचा था, हैंडफुल ऑफ अंसार एंड मुहाजिर, तभी पूछा, जाबिर ने कहा कि कौन है जो ये मुशरिक के पास पहुंचेगा। तो जाबिर, जो तलहा रदियल्लाहु अन्हु है, उन्होंने कहा मैं आगे आता हूँ, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन जाबिर गोज ऑन टू द mention and advancement of the helpers to fight and how they were killed one after another, which is similar to the Muslims recording. यानी ये दो रिकॉर्डिंग्स है, मुस्लिम में भी रिकॉर्ड हुआ है और अन-नसाई में भी रिकॉर्ड हुआ है, सिमिलर सिचुएशन कि बारी बारी जो है वो मुहाजिर आगे आ रहे थे, कत्ल हो रहे थे, और आखिर में सिर्फ दो जो मक्कन्स हैं मुहाजिर वो बचे हुए थे। When all the helpers were killed, Talha proceeded to fight as much as the other 11 did until his hand was injured and his fingers were severed. उसी तरीके से तलहा रदियल्लाहु अन्हु भी आगे आते गए, उन्होंने भी कंटिन्यूसली फाइट करना शुरू किया और उनका हाथ जो है वो इंजर हो गया था पूरी तरह से, उनकी फिंगर्स भी बुरी तरह से जख्मी थी। So he said, "Be the cut off." The Prophet said, "If you had said that in the name of Allah, the angels would have raised you up before the people's very eyes." Then he said, Allah drove the idolaters off him. उन्होंने कहा, यानी तलहा रदियल्लाहु अन्हु की एक्सप्रेशन थी बी द कट ऑफ, यानी वो उंगलियां जो है वो कट जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुमने अल्लाह का नाम लिया होता तो फरिश्ते जो हैं वो तुमको रेज अप करते लोगों की और नजरों में। एक और एक बात आप समझें, हमारी कोई भी कैफियत हो, हमारे ऊपर कोई भी हालात गुजर रहे हो, इमरजेंसी,
दुख का मामला, खुशी का मामला, उम्मीद का मामला, कोई भी मामला चल रहा हो हमारे साथ, हमारी ज़बानों पे अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम हमेशा रहना चाहिए। हमारी ज़बानें तर होनी चाहिए बिफोर सेइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, बिइज़्निल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये सारे कलिमात से ही हमारे सेंटेंसेस बिगिन होने चाहिए। इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये कलिमात से इसके फ़ायदे इतने इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम हर हमारे मामले में अल्लाह अज़्ज़ व जल को शामिल कर रहे हैं। हम हर हमारे खुशी के मामले में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। हम हर मुश्किल मामलात में अल्लाह की मदद चाह रहे हैं। हम हर एक्सप्रेशन में अल्लाह को याद कर रहे हैं। जब हम ये करते हैं और हमारी प्रैक्टिस इस तरीके से होती है, तो हमारे आगे हमें कॉपी कौन कर रहा है? हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, उनके ज़बानों पर भी ये जारी हो जाएंगे। और इसका अनगिनत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। तो हमेशा जहन में रखें, हर मामलात में आप अल्लाह को शामिल करें, तब जाके आपके दर्जात बुलंद होते हैं, तब जाके अल्लाह इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन योर मैटर्स। अगर आप सिर्फ अपनी ही हाँकते रह जाएंगे और अपनी ही आपकी बड़ाई करते रह जाएंगे और अपने आप को क्रेडिट देते रह जाएंगे, आप अकेले हो जाएंगे एंड यू डोंट हैव अल्लाह's हेल्प विद यू। तो अल्लाह की मदद चाहिए तो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की हम्द सना करें, अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह से डरें और अल्लाह पे तवक्कुल रखें या रब। एंड यकीन करें, इबादत या दुआ का मामला ऐसा नहीं है कि आप एक मखसूस वक्त पे या बस आपने जब सजदा कर रहे हो आप या आप दुआ कर रहे हो तब। ये आपकी ज़िंदगी का सुबह उठने से रात के सोने तक पूरे दिन का मामला है। हर हर जगह पर आप कहाँ कहाँ अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट कि यू आर इन अ स्टेट वेयर यू आर इन्वॉल्विंग अल्लाह अज़्ज़ व जल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज दैट इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स। देन वहाँ पर है जब आपके ज़बान पे अल्लाह का जिक्र रहेगा, तो बिइज़्निल्लाह या रब हुस्नुल खातिमा होते हुए शहादा भी आपको आपकी ज़बान पे जारी रहेगा जब आपके आखिरी वक्त होंगे। और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह जब कब्र में आपके साथ सवाल जवाब होगा, तो दिस विल बिकम नॉर्मल इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह टू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड फेस द एंजल्स राइटली बिइज़्निल्लाह। In his book Al-Iqlil, Hakim states that Talha had sustained 39 or 35 wounds and his fingers were paralyzed. एक किताब जो है अल-अकील, उसमें हकीम कहते हैं कि तलहा की जो है 39 से 35 इंजरीज थी और उनकी फिंगर्स जो है वो इतनी ज्यादा सीवियर हो गई थी कि बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। Al-Bukhari reported that Qais bin Abi Hazim said, I saw the hand of Talha and it was paralyzed because he protected the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with it during the battle of Uhud. यानी उसका हाथ जो था तलहा रदियल्लाहु अन्हु का पैरालाइज हो गया था because literally वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे जंग उहद में। At-Tirmidhi and Ibn Majah reported that afterwards the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would say about Talha, whoever desires to see a living martyr walking on the earth should look at Talha bin Ubaidullah radiyallahu anhu. उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर कहा कि किसी को अगर देखना है चलता फिरता शहीद इस अर्द पे घूमते हुए, तो उसने तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु पे नजर डालनी चाहिए। अबू दाऊद at-Tayalisi reported that Aisha radiallahu anha said, whenever Uhud was mentioned, Abu Bakr radiallahu anhu used to say, that was Talha's day, that is battle. यानी तलहा बिन उबैदुल्लाह जो है वो हीरो साबित हुए जंग उहद में। एंड अबू दाऊद की अत-तयालीसी रिपोर्ट कर रहे हैं कि आयशा रदियल्लाहु ने कहा था कि कभी भी जंग उहद का जब भी मेंशन होता था तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु कहते थे कि वो तलहा रदियल्लाहु का दिन था। Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu recited a verse of poetry concerning him. Talha bin Ubaidullah radiallahu anhu, paradise is for you just as water springs are for the deer to drink from. आपको पता है इनका कल्चर, they used to express themselves in terms of poetries. तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने इस मेंशन के ऊपर तलहा रदियल्लाहु अन्हु को कहा था कि वो जो दिन था जंग उहद का, वो तलहा रदियल्लाहु अन्हु का था। और तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु के लिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए जन्नत के जो वाटर स्प्रिंग्स हैं, जो पानी के जो झरने वगैरह हैं, वो इस तरीके से हैं जैसे कि डियर के लिए पानी का इंतजाम होता है ना नॉर्मल जंगल में, उस तरीके से आपके लिए जन्नत में उस तरीके का इंतजाम है। एट द मोस्ट डेलिकेट एंड डिफिकल्ट टाइम Allah, glory is to him, has sent down his invisible help. यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे डिफिकल्ट मोमेंट पे आप देखें इतने सारे मुशरिक, इतने सारे बुत परस्त और दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो उनको कत्ल करना चाह रहे हैं। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज उनके पास ना कोई प्रोटेक्शन है आसपास, ना कोई आर्मी, ना कोई स्क्वाड, ना कोई बटालियन, हैंडफुल ऑफ पीपल, और आखिर में सिर्फ 2 बचे हुए हैं और ये तलहा उबैदुल्लाह एक
बंदा समझो, तो उनके होते हुए भी अल्लाह की मदद शामिल है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दो उनको इंजरीज हुई, वुंड्स हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज हयात। तो ये अल्लाह की मदद है, दिस इज द इनविजिबल हेल्प ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह Allah protected him at that point of time. In Sahih al-Bukhari and Muslim, it is reported that Sa'ad said, I saw Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam on the day of Uhud with two men who were dressed in white and defending him fiercely. I have never seen anyone similar to them before Uhud or after it. Sahih al-Bukhari और मुस्लिम में भी रिकॉर्डेड है कि रिपोर्टर दिलानु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग उहद में देखा था सिर्फ दो आदमियों के साथ जो सफेद पोशाक में थे, और इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि इससे पहले मैंने उनको इस तरीके से लड़ते हुए नहीं देखा। अब आप देखें, इसमें भी अल्लाह की मदद शामिल है कि वो दो लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसा इक्विप कर दिया, ऐसे एक ढाल बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी कर दी, जिन्होंने मुशरिक्स को, जिन्होंने दुश्मन को पीछे भगा दिया, सिर्फ दो आदमियों ने। In another version it says he meant to say that they were Jibril and Mikail, यानी एक अलग वर्जन में वो कहते हैं कि ये अनदर वर्जन एंड ओपिनियन है कि ये जो दो बंदे हैं ये ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कि जिब्रील अमीन और मिकाइल जो यानी जो फरिश्ते हैं अल्लाह की तरफ से, वो नजर आ रहे थे। they were not giving the feeling of a human being। वो जिब्रील अमीन लग रहे थे और मिकाइल अलैहिस्सलाम लग रहे थे। Companions around the messenger sallallahu alaihi wasallam, all those events occurred quickly, and if the gravity of the situation would have realized sooner by the prophet's companions, they would have rushed to him for his aid faster and would not have let him sustain any wounds. Unfortunately, they did not get there until after Allah's Messenger ﷺ got wounded and 6 of the helpers had been killed, while the 7th was severely wounded and desperately fighting to defend the Prophet Muhammad ﷺ. As soon as they reached the Prophet Muhammad ﷺ, they encircled him with their bodies and weapons and were able to prevent the enemy from reaching him. The first one to reach there was his companion of the cave, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. अब ऐसा हुआ कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी, यानी ये जो अंसार और महाजिर और यानी साथ वो अंसार जो कत्ल होते जा रहे थे और लास्ट में ये जो दो बचे हुए थे, ये इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था और इतनी गहमा गहमी चल रही थी कि जो बाकी सहाबा दूसरी जगह पे लड़ रहे थे उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुंडेड हो गए और बाकी सारे जो अंसार थे वो कत्ल हो गए और सातवां जो बंदा था वो बुरी तरह से घायल हो चुका था, तभी जाकर ये सहाबाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपनी बॉडी से, अपने वेपन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। और जो पहला शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे वो और कोई नहीं, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, जो उनके गारे हिरा केव के साथी थे। Ibn Hibban, sorry, not Gari Hira, it was Gari Suhar. Ibn Hibban in his Sahih records a version from Aisha radiallahu anha in which she narrates that Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu said on the day of Uhud, when all the people had left the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I was the first to go back and see him. Yeah, before him, I saw a man fighting to shield him from the enemy. I said to myself, I wish he were Talha. Let my father and mother be ransomed for you. Let him be Talha. Let my parents be ransomed for you. On my way, I was overtaken by Abu Ubaidah bin al-Jarrah, who was moving as swift as a bird. We both rushed to dress the Prophet's wounds. Then we found Talha suffering from serious wounds before Allah's Messenger. The Prophet Muhammad ﷺ said, see to your brother, for he is in more need. I noticed that 2 rings of the iron ringed helmet had penetrated the Prophet's cheek. So I set out to take them out. However, Abu Ubaidah radiallahu anhu demanded, by Allah, Abu Bakr radiallahu anhu, I request you to let me do it. Fearing to hurt the Prophet Muhammad ﷺ, he started pulling one of the 2 rings very slowly and carefully with his mouth. Then he pulled the arrow out by his mouth too. Consequently, his front tooth came out. I too went to pull the second one out, but Abu Ubaidah radiallahu anhu requested me to leave it, saying, Abu Bakr radiallahu anhu, I beg you by Allah Azza wa Jal to let me do it. अब ये था कि दूसरी जो अल हिबान सही की रिकॉर्ड्स है उसमें आयशा रदियल्लाहु अन्हा बताते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि जंग उहद के दिन जब सारे लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया था तो आई वाज द वन जो उनके पास लौट के आया था, जब उन्होंने देखा कि सिर्फ ये आखिरी में 2 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते करते बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा, तलहा रदियल्लाहु अन्हु जो है वो शील्ड कर रहे हैं और बड़ी दीदादरी से, बड़ी बहादुरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी पूरी जान लगाकर और अपने आप को
पूरी तरह से डेडिकेट करके। तो तभी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में आ रहा था कि काश मैं इनकी जगह होता, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह होता, क्योंकि जिस तरीके से उनको मौका मिला था कि एक बेहतरीन अमल के अंदर मुब्तला हो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त प्रोटेक्ट करें जब उनको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत थी, और वो अकेले ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी खूबसूरती से अदा कर रहे थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स उनके लिए आ रहे थे कि वो अपने माँ बाप को कह रहे थे कि मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे लिए रैंसम रख दूंगा, तुम्हारी ये बहादुरी के लिए इनको प्रेज किया जा रहा था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की हसरत हो रही थी कि काश मैं उस वक्त वो रोल अदा कर रहा होता। यानी आप देखिए इन लोगों का जो प्यार मोहब्बत, इनकी कैफियत जो थी दीन के लिए, इस्लाम के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो वो कितनी स्ट्रांग थी कि ये अपनी जानों को निछावर करने के लिए हसरत रखते थे। हमें हसरत क्या होती है? हमारी हसरत है दुनियावी चीजों को हासिल करने के लिए होती है। बड़ा सा विला हमारा क्यों नहीं है, गाड़ी क्यों नहीं, हमारे पास इतना गोल्ड क्यों नहीं, हमारे बच्चे इतने लायक क्यों नहीं। हमारी कभी भी सोच दीन के लिए उस लेवल पे नहीं जाती, यानी हम कभी उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जो डिजायर्स हैं या हमारा जो दिल है वो दुनिया में ही अटका हुआ है। आई होप कि हम लोग भी उस लेवल पे सोच पाए। आई अंडरस्टैंड वी डोंट हैव सच अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ, बट इस वक्त जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जैसे हम किसी दाई को देखें या हम किसी आलिम और आलिमा को देखें, हम किसी हुफाज को देखें, तो हमारे दिल में वो हसरत नहीं पैदा होती कि काश मैं भी ये दीन का काम करूं, मैं भी कुरान को हिफ्ज कर सकूं, मैं भी दावा कर सकूं। ये चीजें हमें अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। हमें अपना लव फॉर अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंक्रीज करना पड़ेगा, अल्लाह के नबी के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, अल्लाह के कुरान के लिए हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज वेयर द रियल सक्सेस लाइज, उधर है कामयाबी हमारी। लेकिन सुभान अल्लाह, ये हमारे जो रोल मॉडल हैं, ये लोग अपनी जानों को बोलते ना अल्लाह की खातिर बिल्कुल देने के लिए उतावले होते थे। उनकी हसरत होती थी, उनकी डिजायर होती थी कि मैं उस जगह पे हूँ और आई डोंट केयर मुझे फिजिकल इंजरीज आ रही हैं, लेकिन मैं नबी को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं कुछ काम आ सकूं दीन के। सुभान अल्लाह। सो उन्होंने ये हसरत की कि मैं उधर उस जगह पे होता, कितना अच्छा होता। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनकी सफरिंग्स जो है, जैसे हमने डिस्कस किया कि उनकी हेलमेट के 2 मेटल रिंग जो उनके चीक पे चले गए थे, अंदर पियर्स कर गए थे, और उनके आगे के जो इंसिजर्स थे वो भी इंजर हो गए थे। तो अभी जो है उनको उनकी जो वूंड्स हैं उनकी मरहम पट्टी करने का वक्त आया हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि बहुत ज्यादा इंजर हैं, उनको अटेंड करो, क्योंकि उनको अटेंशन की ज्यादा जरूरत है। एनीवेज, तो उनको भी अटेंड किया जा रहा था, और इधर जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटेंड कर रहे थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो रिंग्स जो है उनकी चीक में जो पेनिट्रेट कर गई थी, 2 चीक्स, उसको निकालने जा रहे थे, तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिक्वेस्ट किया कि ये काम आप मुझे करने दें, आई विल डू इट। एंड देन टर्न बाय टर्न अपने वो जो रिंग्स उनके निकाल रहे थे, उनके दांतों को अटेंड कर रहे थे, और सेकंड रिंग को भी पहली एक रिंग को निकाला उनके चीक से, फिर सेकंड रिंग को बहुत केयरफुली निकाला उन्होंने, अपने अपने माउथ से उन्होंने पियर्स किया उसको, यानी वो इतनी इतनी टाइटली उनके चीक के अंदर पेनिट्रेट कर गई थी। तो अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने अपने माउथ से उसको, अपने दांतों से उसको खींचकर बाहर निकाला, एक को निकाला, फिर दूसरे को निकाला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सी टू योर ब्रदर फॉर ही इज इन मोर नीड, यानी उनको जो है वो तलहा रदियल्लाहु अन्हु की ज्यादा फिक्र हो रही थी। एंड अगेन जब ये अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटेंड करते, तो बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी फिक्र जो है वो तलहा रदियल्लाहु अन्हु के लिए जाहिर करते कि आप उनको देखें, वो ज्यादा जरूरतमंद है। वी अप्रोच तलहा रदियल्लाहु अन्हु टू टेंड हिम बट फाउंड that he had some 10 sword wounds in his body. This showed how efficiently Talha had fought and struggled on that day. फिर जब ये दोनों तलहा रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि 10 जो है तलवार के मार्क्स जो है उनकी बॉडी पे है, और इससे अंदाजा लग रहा था किस तरीके से, किस बहादुरी से, किस निडरपने से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्ट किया था। At that ill moment, a group of Muslim heroes gathered around the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, forming a shield to protect him from the idolaters. This included Abu Dujana, Musab bin Umair, Ali bin Abi Talib, Sahal bin Hunayf, Malik bin Sinan, who was the father of Abu Sa'id al-Khudri, Umara Nusayba bin Ka'ab al-Maziniya, Qatada bin An-Numan, Umar bin al-Khattab, Hatib bin Abi Baltah, एंड अबू तल्ला रदियल्लाहु अन्हुमा। यानी ये सारे लोग जो हैं, फिर जो अपने मुस्लिम हीरोज थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैदर हो गए उनको शील्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये सारे जितने नाम मैंने जिक्र किए ये सब उसमें शामिल थे।
The idolaters increased the intensity of battle. The number of the idolaters began to steadily increasing, and so did their attacks. अब धीरे धीरे जो भाग खड़े हुए थे ना उहद में, वो मुशरिक भी धीरे धीरे लौट आए. उनको अंदाजा लग गया कि अभी जो है बाजी हमारे हाथ में है, अभी मुस्लिम्स जो है वो कमजोर हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे लौट कर आ रहे थे, जिससे कि उनकी तादाद जो है वो बढ़ रही थी. तादाद बढ़ने के साथ साथ उनके अटैक्स भी बढ़ रहे थे. Their drive increased to such an extent that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam fell into one of the holes dug and designed by Abu Amir al-Fasik, which he created as traps. With his knee wounded, Ali helped and Talha bin Ubaidullah helped him. Nafi bin Jubair said, I heard an immigrant say, I have witnessed the battle of Uhud and watched arrows being hurled from all directions at the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and none of them hit him. अब ये हुआ कि जैसे इन लोगों के अटैक्स बढ़ने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पीछे, यानी ऑफ कोर्स ये अटैक्स आ रहे हैं और डिफेंड चालू है, तो उसमें ये हुआ मामला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक जो होल था उसमें ट्रैप थे. अब ये जो है ना मक्खन जो है ना, ये लोगों ने ट्रैप बनाया हुआ था, जिसमें आमिर बिन अल फासिक जो थे उन्होंने ये ट्रैप बनाया था मुस्लिम्स के लिए. तो उसमें गिरने से उनका जो नी है वो वुंड हो गया, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको हेल्प किया, एंड तलहा बिन उबैदुल्लाह ने भी उनको हेल्प किया उस होल में से निकलने के लिए. नफी बिन जुबैर ने कहा कि मैंने एक मुहाजिर को सुना था कि जंग उहद में जो एरोज हैं, तीर हैं, उसकी बारिश हो रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन सुभान अल्लाह एक ने भी उनको इंजर नहीं किया. अब्दुल्ला बिन शिहाब अज़-ज़ुहरी ने कहा, गाइड मी टू मोहम्मद, guide me to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by Allah azza wa jal, if I do not kill him then I would not want to live. अभी शिहाब अज़-ज़ुहरी ने कहा कि मुझे बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं, अगर मैंने उनका कत्ल नहीं किया, जब तक उनका कत्ल नहीं किया तो मैं सुकून से जिंदा नहीं रह सकूंगा. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam was next to him alone but he was unable to see him. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास थे, एकदम करीब में खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसको उनके लिए इनविजिबल कर दिया हुआ था. Safwan, another mushrik, chastised him for not attacking him, but Abdullah swore that he did not see Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adding that he might be immune to their attempts on his life. He also said that 4 of them pledged to make a fresh attempt to kill him but to no avail. यानी आप सोचिए अल्लाह की मदद किस किस तरीके से आती है कि उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, उनके बाजू में खड़े होते हैं, लेकिन उनको नजर नहीं आते. इनफैक्ट जो दूसरा मुशरिक था सफवान, वो दूसरी तरफ था, उसने कहा उसको, तुम्हारे पास खड़े हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कसम खा रहा है कि नहीं, मुझे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए. और फिर मुशरिकों ने नया प्लान किया कि वो कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर सकते हैं. यानी हम देख रहे हैं कि जंग बदर की तरह यहाँ पर कोई अल्लाह ताला ने फरिश्ते नहीं उतारे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल है इन प्रोटेक्टिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Unprecedented heroism. The Muslims demonstrated unprecedented heroism and marvelous sacrifices. For example, Abu Talha shielded Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam with his body, using his own chest to protect the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam against the arrows of the enemy. Anas related that on the day of Uhud, when people abandoned the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha, being a skillful archer who could shoot many arrows, broke 2 or 3 bows that day. When a man passed along with a quiver full of arrows, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would say, give the arrows to Abu Talha. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam watched the people shooting, Abu Talha would say to him, may my father and mother be ransomed for your safety. Do not go too close, lest an arrow on there should hit you. I would rather die than to see you hurt. अभी आप देखेंगे कि टर्न बाय टर्न किस तरीके से सहाबाज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. जैसे हम लोगों ने देखा कि अबू तलहा जो है वो अपनी बॉडी के साथ, अपने चेस्ट के साथ, अपने जिस्म के साथ, यानी वो एक इंसानी शील्ड बन गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और कैसे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे. वो एक बहुत शातिर तीरंदाज थे, तो बहुत सारे उन्होंने तीर दुश्मनों की तरफ फेंके. और जब भी कोई आदमी यानी इनकी टीम का, मुस्लिम्स की टीम का गुजरता था जिसके पास बहुत सारे एरो होते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डायरेक्शन देते थे कि आप ये एरोज जो हैं, ये तीर जो हैं, ये अबू तलहा को दे दो, और फिर वो जो है अपना दुश्मनों को दूर किया करते थे. और इसके ऊपर अबू तलहा के रदियल्लाहु अन्हु भी कमेंट करते थे कि मेरे माँ बाप जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए कुर्बान जाए, रैंसम हो जाए, और मैं जो है आप ज्यादा करीब ना जाए एरो के कि आपको हिट नहीं हो जाए, और मैं अपने आप को मरना ज्यादा बेहतर समझता हूँ रादर देन कि आपको मैं जख्मी देखूं.
ये इनका जज्बा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये थी इनकी मोहब्बत कि मैं खुद कत्ल हो जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं अपने नबी, अपने रसूल को इंजर नहीं देख सकता। Abu Dujana radiallahu anhu stood before Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and protected him from the arrows with his back. अभी एक दूसरे सहाबा अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने पीठ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया और सारे एरोज जो भी उनको आ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी पीठ पे ले रहे थे दर्द। Hatib bin Balta'ah radiallahu anhu followed Utbah bin Abi Waqqas, who had broken the honorable incisor of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and struck him with his sword, cracked his head and took his horse and sword. Saad bin Abi Waqqas radiallahu anhu was so keen to kill his brother Utbah, but he could not. However, Hatib radiallahu anhu could. अभी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अटैक करके दांत को जो इंजर किए थे, उनको उसका नाम उतबा बिन अबी वकास था। तो उसको उतबा बिन अबी वकास को अटैक करने के लिए कौन पहुंचा? साद बिन अबी वकास। उसने उसको अपनी तलवार से उसका सर जो है वो इंजर कर दिया, उसका घोड़ा उसकी तलवार ले ली, और इतना साद बिन अबी वकास जो है वो इतना उतावले हो रहे थे अपने भाई का कत्ल करने के लिए। भाई उनका जो था उतबा बिन अबी वकास, वो दुश्मन साइड पे था, राइट, और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक को इंजर किया था। तो अभी साद बिन अबी वकास अपने भाई को कत्ल करने के लिए उतावलू हो रहा था, क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंजर किया था, लेकिन उसके हाथ से उनका कत्ल नहीं हुआ, उसके भाई का कत्ल उतबा रदियल्लाहु अन्हु के हाथ से, हातिब रदियल्लाहु अन्हु के हाथ से हुआ। इस तरीके से उतबा बिन अबी वकास का कत्ल हातिब ने किया। सहल बिन हुनैफ रदियल्लाहु अन्हु said, who was a hero among the archers, also pledged to die in the cause of Allah Azza wa Jal. He also played a prominent part in the Battle of Uhud. सहल बिन हुनैफ रदियल्लाहु अन्हु भी कहते हैं कि कौन था वो तीरंदाज जो बहुत शातिर था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसने जंगे उहद में प्ले किया। We know he's talking about Talha radiallahu anhu. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was also involved in shooting arrows. It is related from a version by Qatada bin An-Numan that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam shot so many arrows that the two ends of the bow bent. So Qatada bin An-Numan radiallahu anhu took it and remained with him. On that day, his eye was injured and it fell out of its socket and onto his cheek. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam placed it back in its socket with his hand, and it became the better and stronger of the two. दूसरे एक सहाबा का किस्सा है जो बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन बहुत सारे तीर जो हैं वो शॉट किए थे, और इतना ज्यादा किए थे कि उनका जो बो था, कमान जो था, वो थोड़ा सा बेंड हो गया था। अब कतादा भी अन-नुमान रदियल्लाहु अन्हु जो है वो उनके साथ थे, और उनकी आंख में इंजरी हो गई थी, और वो इंजरी ऐसी हो गई थी कि उनकी जो आई बॉल थी वो अपने सॉकेट से निकल के उनकी चीक पे लटक गई हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसको वापस से दोबारा उनके सॉकेट में डाला, एंड उसके बाद से वो आंख जो थी वो दूसरी से बेटर परफॉर्म करने लगी, ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, वन ऑफ द मिरेकल्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। On that day, Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu maintained fighting until his mouth was wounded. He sustained over 20 wounds, some in his leg, which made him lame. दूसरे सहाबा अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो भी काफी ज्यादा उन्होंने अच्छी जंग की थी, जिससे कि उनका जो माउथ है वो इंजर्ड हो गया था। 20 इंजरीज उनको लगी थी, और उनकी टांग भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसके वजह से वो लंगड़ाने लगे थे। Malik bin Sinan radiallahu anhu, the father of Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, sucked the blood from the Prophet's cheek until he cleaned it. अभी मालिक बिन सिनान रदियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, जो ये अबी सआद अल खुदरी के वालिद थे, उन्होंने सक करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लड जो है चीक पे से क्लीन किया था। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, spit it out, but Malik said, by Allah, I will never spit it. Then he went out to fight, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, anyone who wishes to see a man amongst the people of paradise should him look at this one. No sooner had he resumed fighting that he was martyred in the thick of the battle. अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सक करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लड जो है उनका क्लीन किया, और अंदर जो है उनका चीक जो है साफ किया, उनके गालों को साफ किया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप ये जो ब्लड है उसको बाहर थूक दीजिए। तब मलिक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं नहीं इसको स्पिट आउट करूंगा, और फिर वो जंग के लिए दोबारा से निकल पड़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कमेंट किया कि अगर कोई देखना चाहता है कोई एक ऐसा शख्स जो जन्नत से है तो वो इस बंदे को देखे। और थोड़ी ही देर बाद जो है मलिक बिन सिनान रदियल्लाहु अन्हु वो शहीद हो गए। उमारा
Radiallahu anha also participated in the fighting. She encountered Ibn Qamiya in combat and sustained a slight wound on her shoulder. But she herself also struck him with her sword several times. But he survived because he was wearing two armors. She, however, went on striking until she had received 12 wounds. Amara, the lady, रदियल्लाहु अन्हा, ये भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया फाइट में और इब्न कामिया के साथ वो कॉम्बैट कर रही थी, डुअल कॉम्बैट कर रही थी और उनका शोल्डर पे जो है थोड़ी सी इंजरी आ गई थी, मगर उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर अच्छी तरह से तलवारबाजी की। वो जिंदा रहा बट क्योंकि उसने 2 आर्मर्स पहने थे फ्रंट एंड बैक में, लेकिन कंटिन्यूसली जो है हमारा रदियल्लाहु वो फाइट कर रही थी और तकरीबन उनको 12 इंजरी हुई थी। While Mus'ab bin Umair radiallahu fought fiercely and ferociously defending the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam against the attacks of Ibn Qamiya and his associate, he was carrying the Muslim standard with his right hand. In the process of fighting, his hand was severed, and so he grabbed the standard with his left hand, which was also amputated. So he knelt down and shielded it with his chest and neck, at which point Ibn Qamiya came and killed him. Because Mus'ab's appearance resembled that of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so he mistakenly believed that he had killed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and began to shout, Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been killed. अभी मुसाब बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इब्न कामिया उधर आया अपने साथियों के साथ और मुसाब बिन उमर जो है वो फ्लैग पकड़े हुए थे मुस्लिम्स का अपने राइट हैंड में, तो उन्होंने उसके राइट हैंड को इंजर किया। फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड में शिफ्ट किया तो उन्होंने उसका लेफ्ट हैंड कट कर दिया। अब वो नीचे गिर गए और उन्होंने उसको शील्ड किया अपने चेस्ट और नेक के साथ। जब इस पॉइंट पे कामिया ने आके उनका कत्ल कर दिया। अब मुसाब बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु की थोड़ी अपीयरेंस जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी, तो इनको क्या लगा, इन्हें लगा, इब्न कामिया और ग्रुप को लगा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया, तो वो बड़ा खुश हुए और चिल्लाने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया। The rumor of the death of the Nabi sallallahu alaihi wasallam and its effect on the battle. No sooner that Ibn Qamiya uttered these ominous words that anxiety gripped the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, causing their morale to drastically reduce. Confusion and a miserable state of disorder prevailed among them. Not only did the rumor adversely affect the Muslims, but it also caused a sharp decrease in their assaults. They began to believe that they had really achieved their objective, the death of the Prophet, and so they turned towards mutilating the bodies of the dead. यानी ऐसा हुआ कि ये एक अफवाह का, ये एक गलत फहमी का असर ऐसा हुआ कि मुस्लिम्स की मोराल जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई और वो कंफ्यूज्ड हो गए, उनमें एंजाइटी आ गई, बहुत दुख तारी हो गया, बड़ी गहमा गहमी चालू हो गई और वो अटैक्स जो है उनके लूज होने लगे और उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कंटिन्यूस इस्लाम को डिफेंड करना है, वो बिल्कुल ख़त्म होने की कागार पे पहुंच गया था। तो रादर देन अटैकिंग वो क्या करने लगे, जो डेड बॉडीज थी उसको कट करने लगे, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ कंफ्यूजन। The messenger consolidates his position in the battle. When Musab radiallahu anhu was killed, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam gave the standard to Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. जब मुसाब रदियल्लाहु अन्हु का कत्ल हो गया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ्लैग था वो किसको दे दिया, अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को दे दिया। Ali in conjunction with the other companions remained fighting bravely, setting marvelous examples of heroism, courage and endurance in both defense and offense. अभी अली रदियल्लाहु अन्हु ने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया फाइटिंग का, वो भी लड़ते रहे, डिफेंड करते रहे अच्छी तरह से। Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam made his way to his encircled army. Ka'ab bin Malik radiallahu anhu was the first one to recognize the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, approaching and shouting at the top of their lungs, Muslims, be cherished. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam is here. However, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam signaled for him to stop, lest his position be located by the idolaters. Upon hearing the shout, the Muslims immediately raced towards the source, which brought about 30 companions to gather around the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. With this assembled number of his companions, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam started drawing a planned withdrawal to the hills. अभी ऐसा हुआ कि जो अफवाह उड़ी हुई थी कि मुसाब रदियल्लाहु अन्हु के कत्ल के बाद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया है और इनकी मोराल जो है वो नीचे जाने लगी, तो फिर अली रदियल्लाहु अन्हु ने फ्लैगशिप पकड़ी, उन्होंने लड़ना शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने सहाबास के पास पहुंचे। अभी उनको सबसे पहले देखा किसने, काब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु। उन्होंने देखकर रिकॉग्नाइज कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है, हयात है, तो वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा कि मुस्लिम्स खुश हो जाओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ही है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोका, उनको सिग्नल किया कि आप मत ज्यादा शोर मचाओ, क्योंकि ठीक है मुस्लिम्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है लेकिन मुशरिक्स के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और फिर वो अटैक के लिए लपकेंगे।
तो फिर उनके पास तकरीबन 30 सहाबाज पहुंच गए थे अभी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएटली प्लान स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि कैसे उहद के पहाड़ के पास उनके विड्रॉल का प्लान किया जाए, हिल्स के पास एक प्रोटेक्टिव एरिया में जाया जाए। Hostilities from the enemy grew fiercer as they aimed to foil the plan of the Muslims' withdrawal. Their attempts proved to be fruitless due to the heroic steadfast of the Lions of Islam. यानी मुशरिकों को तो ये पता था वो किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, और अभी मुस्लिम्स जो है वो अपनी सेफ जगह पे विड्रॉ करने वाले हैं। तो वो जो है उनकी सारी जो एक्टिविटीज थी उसके ऊपर पानी फिर चुका हुआ था ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि सुभान अल्लाह, जो दीन इस्लाम के जो शेर थे, जो लायंस थे, बब्बर शेर थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकामत और अपनी बहादुरी दिखाकर अच्छा मुजाहरा किया था, और इस वजह से मुशरिक के सारे प्लान्स जो है वो फेल हो चुके थे। उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन अल-मुगीरा रदियल्लाहु अन्हु was the Uthman bin Abdullah bin al-Mughira, okay, he was from the Mushriks, who was the part of the enemy cavalry, progressed towards Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, saying, either I kill him or I will be killed. यानी अभी उस्मान जो है वो अभी भी अपनी जहर और दुश्मनी और खुंदक में लगा हुआ था कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किल करना है, या तो आज वो बचेंगे या मैं। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam moved to encounter him, but his mare tripped in a hole. Instead, Al-Harith bin As-Sima radiallahu anhu fought against him. He struck his leg, which immobilized him, and then he finished him off. He took his weapons and caught up with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. जब ये उस्मान मुगीरा उनके पास पहुंच रहा था तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कौन आए? अल-हारिस बिन अस-सिमा आए। उन्होंने आके उसके पैरों को इमोबाइल कर दिया जिससे वो मूव नहीं कर सका, एंड देन फिर उसको कत्ल कर दिया। उसके वेपन्स ले लिए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्वाइन हो गए। However, Al-Haris bin As-Simma radiallahu anhu encountered another person from the cavalry of the enemy named Abdullah bin Jabir. He attacked Al-Haris and struck him on the shoulder with his sword. Al-Haris was carried to the Muslim camp, suffering from serious wounds. However, the enemy horseman did not escape death. For Abu Dujana radiallahu anhu, the red bandana hero, struck him with a heavy blow that severed his head. अब हारिस बिन अल-आसिमा को दूसरा मुशरिक आके अटैक करने लगा, अब्दुल्ला बिन जाबिर। उसने उनकी शोल्डर पे बुरे तरीके से अटैक किया। अल-हारिस रदियल्लाहु अन्हु को कैंप में लेकर जाया गया, लेकिन उनको सीरियस वुंड्स हो गए थे। लेकिन जिन्होंने अब्दुल्ला बिन जाबिर ने जिसको अटैक किया, उसको भी अटैक किसने किया मुस्लिम कैंप में से? अबू दुजाना, जो रेड बैंडाना के हीरो हैं। आपको पता है वो अबू दुजाना जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार दी थी और वो बैंडाना बांध के फिर ही यूज्ड टू फाइट। उन्होंने फिर इसको कत्ल किया, जिसने अल-हारिस बिन अस-सिमा के शोल्डर पे इंजरी पहुंचाई थी। During the bitter fighting, a desire to sleep overwhelmed the Muslims, which was in fact from Allah Azza wa Jal as a security and tranquility to help his Muslim servants. The Quran speaks of this. Abu Talha said, I was one of those who were possessed by the desire to sleep on the day of Uhud. On that day, my sword fell from my hand several times. Again and again it fell down, and again I would pick it up. In a regular withdrawal and with great bravery and boldness, the Muslims finally retreated to the cover of Mountain Uhud. The rest of the army followed them to their safe position. In this manner, the genius of Muhammad sallallahu alaihi wasallam foiled that of Khalid bin al-Walid. जब ये बहुत इस तरीके से जंग चल रही थी और बहुत गहमा गहमी चल रही थी, इस वक्त नींद की गुनूदगी तारी हो रही थी मुसलमान के ऊपर। अब ये जो है ये अल्लाह का करम था। अल्लाह ताला ने इसको मेंशन भी किया है कुरान में। और अबू तला रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं उनमें से एक हूँ जिसके अंदर ये नींद की गुनूदगी आ रही थी जंगे हुद में। कहते मेरे हाथ से तलवार बहुत बार हाथों से मेरी गिरी, फिर मैंने उसको उठाया। और ये रेगुलर विड्रॉल और ब्रेवरी में मुस्लिम जो हैं वो फाइनली कामयाब हुए जंगे उहद, अपना माउंटेन उहद की तरफ अपने आप को प्रोटेक्टिव एरिया में ले जाने के लिए। और जो दूसरी आर्मी है वो भी उनकी जो मुस्लिम सहाबास की थी वो फॉलो की और सेफ पोजीशन में पहुंच गई। इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जीनियस हैं, उन्होंने खालिद बिन अल वलीद के जो दुश्मन है उस वक्त उनके प्लान्स के ऊपर पूरा का पूरा पानी फेर दिया और हावी होके अपने लोगों को एक सेफ एरिया में लेकर जाने में कामयाब हुए। सो इंशाल्लाह वी विल क्लोज हियर। एनी क्वेश्चंस? No questions, no discussions. This is 36. Inshallah, then we will meet tomorrow. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Walaikum